انسان ایک معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹڈنیس سے ہماری. ہم وہ باتیں جو شاید اپنے گھر میں ماں سے, باپ سے, بہن سے, دوست کسی اور سے نہیں کر سکتے, وہ دوست سے اس طرح کر جاتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. کیا بات؟ تنہائی میں جو باتیں یا تنہائی میں جو سوچ آتی ہے, جسے ہم یہ سوچ کر شیئر نہیں کرتے کہ مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں شیئر کرنے سے. دوست ایک ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ سوچ کر بتا رہے ہوتے ہو کہ شاید میں تو کبھی کسی کو بتا دوں لیکن یہ کبھی کسی کو نہ بتا سکتا, یہ بتا سکتی ہے. اس کو قبر سمجھ کے. بالکل. اب اس کے بارے میں 2-3 کنسیپٹس ہیں. ایک اسلامی کنسیپٹ ہے دوست کے بارے میں, ایک نفسیاتی کنسیپٹ ہے, ایک سماجی کنسیپٹ ہے. سب کو باری باری دیکھتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے بہت خوبصورت جو مجھے سب سے اچھی, جو ویسے تو ساری احادیث ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نام جہاں جڑ جائے, مگر ایک حدیث دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو یا تمہارا دوست تمہارے دین پر ہوتا ہے. یعنی جو تمہارا دین ہے, مذہب ہے, جسے تم بلیف کرتے ہو, دراصل تمہارے دوست کا بھی وہی دین وہی مذہب بن جاتا ہے. اب دین سے بڑی کوئی تبدیلی نہیں ہے جو انسان کے اندر آ جائے صرف دوستی کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے ایک نصیحت کی, آپ نے کہا دوست بناتے ہوئے بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ جسے میں دوست بنا رہا ہوں اس قابل ہے کسی دوست بناؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی 6692 نمبر حدیث ہے مسلم کی, بہت ہی مطلب وہ اس ٹاپک کے حوالے سے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا ساتھی ایسے ہے جیسے مشک یا خوشبو کی دکان, اور برا ایسے ہے جیسے بھٹی, جیسے کوئی آگ جل رہی ہو. جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے جلیں گے, لیکن جب مشک کے پاس بیٹھو گے, جب خوشبو کے پاس بیٹھو گے, تم کہیں بھی چلے جاؤ گے اس عطر کی خوشبو ہمیشہ تمہارے جسم سے, تمہاری روح سے آتی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, سورہ المائدہ کی غالباً آیت یہ 57 ہے, ویسے سورہ مائدہ کی 3-4 آیات میں دوستی کا ذکر ہے, مگر اس میں ایک جو ڈیفینیشن دی وہ یہ دی گئی کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو, تمہارے اللہ کو کھیل کود بنایا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو دوستی کرے وہ تمہارا دوست ہے. یہ تو ہے اسلامی کنسیپٹ, یعنی اللہ کے دوستی کے حوالے سے. مولا علی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نہج البلاغہ میں. مولا کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوستی دراصل آپ کو امیر کر دیتی ہے, دوستی آپ کو امارت کے درجے پر فائز کر دیتی ہے. غالب نے بڑی خوبصورت بات کی دوستی کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے, یا آج کل نصیحتیں کرنے والے نہیں, اس نے کہا یہ نہیں چاہیے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. دوست وہ ہے کہ جو میری غم گساری کرے, جو میری چارہ سازی کرے. دوست وہ نہیں جو پوچھے کیوں ہوا, دوست وہ ہے جو کہے اور چل کے اسے ٹھیک کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ کام ہو گیا. ہاں بالکل, مطلب دوست تو اس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے جس میں منافع نہ دیکھے. منافع نہ دیکھے. دیکھیں ایک بہت مشہور ایک حکایت ہے, ایک بڑی مشہور حکایت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ایک بچہ تھا, اس کے بہت سے دوست تھے, تو اس کے باپ نے سوچا کہ اس کو بتاؤں کہ اچھا دوست کسے کہتے ہیں. تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک لسٹ بناؤ دوستوں کی. اس نے ہزاروں کی بنا دی. اس نے کہا نہیں شارٹ کرو. اس نے 100 کی کر دی. کہتے نہیں ان میں سے جو سب سے اچھے 50 کرتے 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 10 رہ گئے. اس نے کہا بیٹا اس میں سے بھی نا جو تم سمجھتے ہو 5 کے بغیر زندگی نہیں, وہ اس نے 5 کے نام لکھ دیے. اس کے باپ نے ایک بکرا لیا, اس کو ذبح کیا, اور اس کی جو گردن تھی اس میں بلڈ لگا کے ایک بوری میں بند کر کے کہا آؤ 5 کے گھر چلتے ہیں. بیٹے کو ساتھ لیا, پہلے دوست کے گھر گئے. بیل دی, باہر آیا, کہا تم اس کو بتاؤ کہ مجھ سے کسی بندے کا قتل ہو گیا ہے. جو ہی بچے نے بتایا اس نے دروازہ بند کر کے کہا میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو. دوسرے کے, تیسرے کے, چوتھے کے, 5ویں کے, 5 نے یہ جواب دیا تو بچہ پریشان ہو گیا. باپ نے کہا پریشان نہیں ہونا, سبق ہے. تم بتاؤ میرے کتنے دوست ہیں زندگی میں؟ اس نے کہا بابا آپ کا تو ایک ہی دوست ہے. اس نے کہا اس کے گھر چلتے ہیں, اور اب کی بار میں نہیں آگے ہوں گا, تم آگے ہوگے میرے بیٹے. دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی میرا دوست عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بیٹا آگے ہوا, بیل دی تو اس کے والد کے دوست نکلے. اس نے کہا بیٹا خیریت ہے, ابو ٹھیک ہیں, امی ٹھیک ہیں؟ ان کا باپ سب ٹھیک ہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے قتل ہو گیا ہے, یہ اس کا سر ہے اور یہ بلڈ لگا ہوا ہے. اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, غلطی میں کیا ہے کیس لڑیں گے, ہم معاوضہ ادا کر دیں گے, تم نے پریشان نہیں ہونا بیٹا. اپنے والد کو نہیں بتانا میں تمہارا باپ ہوں, اندر آ جاؤ. بس بیٹے نے یہ دیکھا اور کہا بابا ایسا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا دوست وہ ہوتا ہے یہ نہ دیکھے تم سے کیا جرم ہو گیا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو کہے کہ آئندہ ہم نے نہیں کرنا اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بیٹا زندگی میں ایک بناؤ اور اچھا بناؤ. کیا بات ہے. بس یہ بات ہے اصل میں, کیونکہ دوست ایک دوا کی طرح ہے, اٹس اے میڈیسن.
क्या बात। आज टॉपिक है दोस्ती के ऊपर, दोस्त के ऊपर, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काशिफ फराज साहब से। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे आप दोस्ती के बारे में, दोस्ती के तकाज़ों के बारे में? वो एक ना मुहावरा हुआ करता था, हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख। हाँ। तो हमारे एक टीचर कहा करते थे, अगर दोस्त साथ हों तो हमा यारा जन्नत होती है, हमा यारा दोज़ख कैसे हो सकती है? तो जो आपने बात की है कि जहाँ दोस्त हो वहाँ तो दोज़ख का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जन्नत ही जन्नत है। अच्छा, और देखें ना, एक दोस्त वही है जो दूसरे की आखिरत की फिक्र करे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब लाए, ये देखे कि कल उसके साथ क्या अंजाम होगा अल्लाह के पास। मैं आपको बता रहा था कि दोस्ती एक दवाई की तरह है, मेडिसिन की तरह है। और ये बात कोई जज्बात में नहीं मैं कह रहा, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री है इसी महीने का, बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि जो दोस्ती है वो दो चीज़ों से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अगर इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त रखिए, वेलनेस है आपकी उसके अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो अच्छा दोस्त सबसे बड़ी मेडिसिन है। बल्कि उन्होंने मेडिसिन के नाम लेकर कहा, मैं वहाँ जेनेरिक नेम नहीं लेना चाहता मेडिसिन के, यूजुअली हम लोग जो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटिक गोलियां लेते हैं, उन्होंने कहा कि इन गोलियों के असरात की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा असरात देखे गए अच्छे दोस्तों के। यानी उन लोगों को जिनको स्ट्रेस थी, डिप्रेशन था, उनमें कुछ लोगों को टैबलेट्स दी गई, कुछ को अच्छे दोस्तों के साथ कंपनी दी गई। जिनको अच्छे दोस्तों से कंपनी दी गई उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे असरात हुए बनिस्बत मेडिसिन के। सो अच्छा दोस्त एक नेमत है। अच्छा दोस्त एक ठंडी हवा की तरह है गर्म मौसम में, और इस तरह के सर्दी के मौसम में एक बहुत गर्म हवा की तरह है। वो आपको बचाता है। वो एक ऐसा कंधा है जिस पर सर रख कर आप रो सकते हैं। वो एक ऐसा हाथ है जिससे आप हाथ मिलाकर कहीं भी सैर कर सकते हैं। वो एक ऐसा कान है जिसमें आप कुछ भी अंडेल सकते हैं। वो एक ऐसा दिल है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वो एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। वो एक ऐसा वक्त है जिसके साथ आप हर तरह का वक्त निभा सकते हैं। वो ऐसा अंधेरा है जिसमें आपको कहीं डर नहीं लगता। वो ऐसी रोशनी है जो आपकी आंखों को चुंधियाती नहीं है। वो तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह का ख़ास कोई आप पे करम हो तो आपको वो दोस्ती मिलती है। और अच्छे दोस्त भी तब मिलते हैं, खुश नसीब इंसान होते हैं। हर दोस्त जो है ना फिजा, उसके अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, और वो दुनिया उस वक्त तक आपको नहीं मिलती जब तक वो दोस्त आपको नहीं मिलता। अगर आपके 3 या 4 अच्छे दोस्त हैं तो आप 3-4 दुनियाओं के मालिक हैं, 3-4 कायनातों के आप मालिक हैं। सर मुझे ना एक चीज़ बड़ी खटकती है, मुझे लगता है बहुत से दुनिया में ऐसे दोस्त यार हैं, हर अपने अपने ममालिक, अपने अपने कल्चर में कुछ जिस तरीके से भी कोई फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ दोस्त मिलते हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है वो ये लगती है कि महफिल में बैठे वो दोस्त जो आपका गहरा दोस्त है और उस महफिल में शामिल नहीं है, मगर बाकी 4 लोगों के साथ आप उसकी जो है ना बुराई सुन रहे हैं। आप कह कुछ नहीं रहे, उसके बारे में आपने बुरा भी नहीं कहा, ना बुरा बोला ना बुरा सोच रहे हैं, मगर आपने उसकी बुराई सुनी और सुनने के बाद आप जाके दोस्त को बता रहे यार तुझे पता है तेरे बारे में ये कह रहे थे, वो कहते ना कि जिस वक्त उसकी बुराई हो रही थी आप उठते खड़े होते और आप कहते कि मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी बुराई नहीं होगी, और वो उस महफिल को छोड़ के उठ के चला जाए, वो दोस्त है। क्या कहेंगे? बहुत आपने मेरे दिल की बात की। शायद अगला जुमला मैं यही अदा करने वाला था जिसको आपने सवाल की शक्ल दे दी। मौला अली से किसी ने पूछा कि किसी शख्स को पहचानना हो तो कैसे पहचाने कि वो कैसा है? ठीक, उस शख्स से मिलना ज़रूरी है? कहा नहीं, उसके हमनशीनों से मिल लो। उसके हमनशीन बता देंगे कि वो शख्स कितना अच्छा है कितना बुरा है। मौला ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा कि किसी शख्स की अगर कोई खूबियाँ सबके सामने बयान करे और उसकी खामियां अकेले में बताए, वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है आपका। तो खूबियां बयान करने वाला दोस्त है, ना कि दोस्तों के सामने खामियां बयान करने वाला दोस्त है। बड़ी बदकिस्मती हुई कि जो पीछे कोविड-19 आया उसकी वजह से 38 कंट्रीज में आइसोलेशन में 37% इजाफा हुआ। इस वक्त दोस्ती इतनी नीचे चली गई है फिजा कि बाकायदा 30 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा को दोस्ती डे, फ्रेंडशिप डे मनाने की बात करनी पड़ रही है। हमारी सोसाइटी में हर दिन फ्रेंडशिप डे है। मुझे नहीं याद पड़ता, जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो हमें संडे बहुत बुरा लगता था। जानते हैं क्यों? लोगों को तो स्कूल या कॉलेज जाना बुरा लगता है, हमें छुट्टी बुरी लगती थी। वाई? उस दिन हम दोस्तों से नहीं मिल सकते थे। हाँ, अच्छा, फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने फादर की, जहाँ से मैंने ज़िंदगी में दोस्ती सीखी। फिजा मैं बहुत छोटा था,
क्लास 4 में था, मेरे फादर की कहीं ट्रांसफ़र कर दी गई नाजायज़। अच्छा। 2 माह भी हुए थे अब्बू की पोस्टिंग को, सरकारी मुलाजम थे, अब्बू इंजीनियर थे। अब्बू की ज़िंदगी में मैंने एक ही दोस्त देखा, उनका नाम मजीद लंबड़दार था। वो रवायती मैंने बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, मतलब मैट्रिक पास थे उस दौर के, तहमत पहनते थे वो। तो उनके भाई जो थे वो बहुत बड़े ऑफिसर थे। अब्बू के साथ हम लाहौर आए, गांव से लाहौर आए, और अब्बू मुझे साथ ले आए। फिजा इस तरह जैसे आप बैठी हैं, ऐसे सेक्रेटरी साहब बैठे थे, यहाँ पर अब्बू के दोस्त बैठे थे, यहाँ मेरे फादर बैठे थे बाएं हाथ, और सामने मैं बैठा था, बिल्कुल छोटा सा 4th जमात का तालिब इल्म। तो मेरे वालिद के दोस्त ने उस सेक्रेटरी से कहा कि ये जो मेरे बाएं तरफ बैठा, देखे बिना, ये जो बाएं तरफ बैठा है मेरा दोस्त है, इसकी ट्रांसफ़र रुकनी चाहिए। अच्छा। सेक्रेटरी साहब ने कहा मेरे फादर को कि ये ट्रांसफ़र नहीं रुक सकती। अब ज़रा दोस्ती का पहलू देखिए, खुदा की कसम। मजीद लंबड़दार ने कहा, सेक्रेटरी साहब जितनी आसानी से आपने मुझे ना कर दी है ना, ऐसे देखते हुए, काश के मैं मुंह इधर को करके इसको भी कह सकता अपने दोस्त को ना। ये गर्दन उस वक्त तक इधर को नहीं मुड़ेगी जब तक ये हाँ नहीं कहती। वाह। मजीद लंबड़दार गर्दन कटवा देगा ना, मैं गर्दन मुड़ेगा अरे नहीं। वाह। और तारीख हुआ है, वहाँ पर आर्डर वापस हुए, रिवर्ट हुए। उसने कहा मेरे वालिद को वापसी पर कि अगर ये आर्डर रिवर्ट ना होते, शबीर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता। आह, क्या बात है। ये है फ्रेंडशिप, कि आप दोस्त की तरफ सर करके ना भी ना कह सकें उसको। वाह वाह वाह। और कितने कितने बड़े हमने एलिमेंट्स देखे हैं कि क्या क्या चीज़ें कुर्बान कर दी जाती हैं दोस्ती के लिए। मैंने तो कहा जान हाजिर कर देते। एक कॉल है, कुलसुम की शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी कुलसुम जी, दोस्ती का टॉपिक है आज हमारा। जी जी, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन हमें तो कभी इतने अच्छे दोस्त मिले नहीं, लेकिन आपकी बातें जबरदस्त हैं। काशिफ फराज साहब की बातें क्या कहने। क्या बात है। अच्छा फिजा जी, आपसे भी एक बात है जी। आप इतना लंबा वक्फा लेती हैं और हमें बोर करती हैं, और हम भूल जाते हैं कि आपका प्रोग्राम का क्या मौजूद चल रहा था। अच्छा, ये ब्रेक जो है ना, ये जो पैसे आने दे दिन बदलने दे, ये अब हम कम करेंगे। एड्स जो है ना हम कम अच्छा, तो चलाएंगे। आप बेशक आधा घंटा कर लें, लेकिन बाद में ठीक है जी। हम प्रोग्राम ये के बाद आपकी में जो आधा घंटा सिर्फ आपकी ये जो आपकी शिकायत है इट्स नोटेड, और हम ये जो है ना मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचाएंगे कि प्लीज़ ब्रेक्स कम। बहुत शुक्रिया। ये भी आपका प्यार और आपकी दोस्ती है हमारे इस मॉर्निंग शो के साथ, मेरे साथ, मेरे मेहमानों के साथ। ये प्यार है आपका, इस दोस्ती की भी मैं कर्जदार रहूँगी। मुझे मेरे जितने फैंस हैं जो हमारे साथ रब्ता करते हैं, प्यार करते हैं, और सोचे देखें लंबी ब्रेक पे भी नाराज़ हो रही है। ये नाराज़गी जो है मैंने दूर करनी है। फिर नहीं, मुझे तो उनकी बात से समझ आया कि लंबी ब्रेक नहीं, वो ब्रेक ही नहीं चाहते। वो कहते हैं आप उनके सामने रहें स्क्रीन पे, वो आपको देखते रहें, सुनते मोहब्बत का रहें। सिलसिला चेक करें। अच्छा, कुलसूम साहब ने जो सवाल किया, मैं चाहूँगा उसको ज़रूर मैं एड्रेस करूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये सवाल किया कि जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें तो नहीं मिलते। हाँ। बहन, बात यह है, अच्छा दोस्त मिलता नहीं है, अच्छा दोस्त आपने बन के दिखाना होता है किसी को। जब आप किसी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो खुद आपका अच्छा दोस्त बन जाता है। सर, मैं इसको इस तरह भी कहना चाहूँगी कि दोस्ती की नहीं जाती, दोस्ती हो जाती है। और देखिए, याद रखिएगा मेरी बात, 4 खूबियाँ चाहिए दोस्त में। दाल वाओ सीन ते। दाल से दयानतदार, वा से वफादार, सीन से सच्चा, ते से ताबेदार। जब तक ये 4 खूबियां ना हो किसी में, वो कभी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती, सुना लफ्ज़ दोस्ती। सती पता किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में जब औरत अपने खामद की चिता के ऊपर आग में जलकर मर जाती थी, क्योंकि इस खामद के बाद वो कहती थी मेरी जिंदगी कोई नहीं, उसे सती होना कहते हैं। 2 सती का मतलब पता क्या है? 2 बार सती होना। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में 2 बार खुद को अपने दोस्त के लिए जला सकता है, मार सकता है, वो दोस्ती का हकदार है। 2 बार ज़िंदगी को मारना पड़ता है दोस्त के लिए, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं। सर, आज के ज़रा यूथ के ऊपर भी बात करना चाहूँगी, वो आप बड़ा अच्छा एलेबरेट करेंगे। मुझे बताइए, जो आजकल की जनरेशन में लड़ाई हो गई है, कहीं पंगा हो गया है, ऐसे कॉल किया और बोला यार ये मसला हो गया यहाँ पे, ये साले को मैंने अभी सबक सिखाना है, पहुँच इधर। वो बेचारा भागा भागा आता है, उसे पता होता है कि मेरा दोस्त पिट रहा है, मैनू भी पैनी है, मगर वो आता है, चित्रौल होता है, वो भी पिटता है बेचारा। ऐसे दोस्तों के लिए क्या कहेंगे यार? देखिए, पता होता है उसको कि मैंने पिटना है। जी बिल्कुल, बात ठीक है। आ जाता है कॉल पे। असल बात ये कहते हैं, दोस्ती और मोहब्बत अकल का निस्फ हिस्सा है। वाह। हमारी निस्फ अकल जो होती है वो दोस्ती में होती है,
اور انسان اپنی عقل شعور کو سمجھتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے، مجھے مار پٹ سکتی ہے، مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، پوچھتا ہے تو بات یہ فضا یہی تو دوست ہے. واہ اگر سوچنا شروع کر دے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہاں عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل سوچتی رہ جاتی، عشق تو کود پڑتا ہے. واہ. دوستی تو عشق ہوتی ہے نا، محبت سے اگلا درجہ ہے یہ. واہ. اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کون سا راستہ لمبا، کون سا چھوٹا، کیا فائدے، پھر دوستی نہ، پھر تو کاروبار ہو گیا. دوست کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بنا سوچے ہوئے کود پڑے، یہ دیکھے بنا. میں نے کہا نا، وہ یہ فیصلہ بعد میں کرے کہ کس کا فائدہ تھا، کس کا نقصان تھا، کس کا قصور تھا، کس کا نہیں تھا. دوست وہ جو کہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہر وقت آپ کے لیے تیار رہے، دن ہو رات ہو، دیکھیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، وہ کہے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں.